Good morning and welcome, students. Today we are going to start 4.1. Please listen. I will not going in detail this because our offline lectures has been started. So from uh, on that you just come and attend the offline lectures. There you will come in to know the detail about everything. Now let's listen. Read this poem. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that you may seem. Listen, all I ask is that you listen, don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless. I may be discouraged and flattering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadvocacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix them. God just listens and lets you work it to out of for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute, and for your turn, I will listen to you. Author unknown. Okay, this is a poem written by unknown poet. He has not mentioned his name over there. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द लेसन, प्लीज लिसन, यानी मेरी बात को सुनो. आप लोग अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं किसी के सामने, कुछ समझाना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहते हैं, तब क्या होता है, नॉर्मली आपका प्रॉब्लम कोई सुनता नहीं है. सब लोग अपना अपना एडवाइस देना शुरू करते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसे करो, ऐसे. कोई आपकी बात को सीरियसली सुनता नहीं है, उसकी बात के तय तक जाना नहीं चाहता, बस अपनी एडवाइस देते हैं ये सोच के कि उनको आपसे ज़्यादा जानकारी है, उनको सबसे ज़्यादा पता है. तो दैट इज़ मेंशन्ड इन दिस पोएम कि ये पोएट क्या बोलते, पोएट बोलते मेरी बात को सुनो. When I ask you to listen to me, you start giving me advice. मतलब जब मैं आप लोगों को मेरे बात सुनने को बोलता, तब आप लोग क्या करते हो, अपनी एडवाइस देना शुरू करते हो. यू हैव नॉट डन वॉट आई आस्क. तो आप लोगों को मैंने कहा था कि बात सुनने के लिए, पर आप एडवाइस देते हो. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feeling. जब मैं आपको अपनी बात सुनने के लिए बोलता है, तो आप लोग कुछ बोल देते हो मुझे, और आप इस तरह मेरा क्या है, मेरे फीलिंग्स को आप क्रश करते हो. ट्रैम्पलिंग मतलब आप पैर के नीचे आपकी फीलिंग्स को क्रश करना. ओके. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू हैव फेल्ड मी. तो जब मैं आपको अपनी बात सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या है, आप लोग लगता है कि आप लोग मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पर आप लोग मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, और उससे यू हैव फेल्ड मी स्ट्रेंज एज दैट मे सीम. मतलब आपने मुझे फेल कर दिया, आपने कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं दे पाए. लिसन, ऑल आई आस्क इज टू दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी. मतलब आपको सिर्फ सुनना है, मेरी बात को ध्यान दे के, आपको बीच में बोलना नहीं. एडवाइस तो बहुत सस्ते में मिल जाती है, 20% के हिसाब से
फॉर बोथ डियर हैबी एंड गिले। ओके, तो क्या एडवाइस तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो न्यूज़पेपर के कॉलम में होता है, डियर एबी और बिली ग्राम करके। ओके, उनके न्यूज़पेपर में उनका कॉलम जो होता है उसमें आसानी से एडवाइस मिल जाता है 20 सेंट के हिसाब से। ही इज़ नॉट हेल्पलेस, वो क्या बोलने चलते, आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। लेकिन आपकी बातें कभी कभी मुझे डिस्करेज कर देता है और मैं हताश हो जाता हूँ या निराश हो जाता हूँ, पर मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. यानी जब मैं कुछ अपने लिए, when you do something for me, जब आप मेरे लिए कुछ करने जाते हो, and that I can and नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर, मतलब आप जब कुछ मेरे लिए करने जाते हो तो क्या होता है, मेरे फियर्स को आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मेरे डर को और बढ़ावा दे देते हो और अनसेटिस्फाई कर देते हो, मुझे संतुष्टि नहीं होता है आपका इससे बात से। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. यानी जब आप एक्सेप्ट कर देते हो कि इसमें सिंपल फैक्ट है, जो मुझे जो लगता है, वो जो भी बात है इरेशनल मतलब इलॉजिकल, कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम उसके वॉट एवर इट गोस उसको हम एकदम इसे फ्लुएंटली नहीं लेते, हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं, अगर ऐसा करने जाओ तो ऐसा होगा वैसा होगा, हम कभी कभी किसी चीज़ के बारे में कुछ हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब हद से ज़्यादा सोचते तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। किसी के कहने पे हम उस चीज़ को हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका अपनी सोच रहता है, आप कुछ अपने आप। इसका सोल्यूशन क्या है, सबको अपने आप को निकालना पड़ता है, किसी के कहने से अपने को। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे, ज़्यादा सोचो मत, तो इससे आपको तसल्ली नहीं होगी। तसल्ली कब होगी, जब आप खुद कन्विंस्ड हो गए कि हाँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ पे, जो चीज़ें इलॉजिकल है या जो फैक्ट नहीं है उसके बारे में हम लोग जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ज़्यादा ये। तो बोलते हैं इसकी वजह से क्या होगा, आप लोग सिर्फ मेरे फियर्स को बढ़ावा देते हो और मुझे कहीं पे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जैसा बर्ताव दे रहे हो। एंड वेन दैट्स क्लियर द आंसर आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस, तो मुझे पता है कि आंसर एग्जैक्टली क्या है, तो आप वही जवाब मुझे दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट बिहाइंड देम, जब मतलब वही इलॉजिकल जो चीज़ें रहती, फीलिंग्स जो रहते, वो तभी सेंस करता है जब हमको उसका रीज़न हमें जब पता चलता है, तब जब हमें खुद को पता चलता है कि हाँ समथिंग इज गॉन रॉन्ग। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice to try to fix things. तो इसीलिए बोलते प्रेयर शायद इसलिए काम कर रहा होगा क्योंकि भगवान सिर्फ अपनी बातें सुनते हैं, वो अपना कोई भी सलाह या एडवाइस नहीं देते हैं। तभी हमें महसूस होता है कि हाँ देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू डू फॉर आवर सेल्फ। इस प्रॉब्लम से हमें खुद हल निकलना है, क्योंकि हमें तब महसूस होता है कि वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय आवर सेल्फ। गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ, यानी भगवान आपके ऊपर छोड़ देता है क्योंकि उसका प्रॉब्लम का हल आपको खुद से ढूंढना है, वो नहीं आते। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी, एंड इफ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। तो इसीलिए यहाँ पे कवि क्या बोलता है, सिर्फ मुझे जो बात करना है, मेरी बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ आप वो मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं, इसके लिए मैं बोलता जब आपका टर्न आ जाएगा तब आप बोल लीजिए। तो दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड इन दिस पोएम, author by unknown. Okay, the assignment has to be done by yourself, the meanings, the question answers and all. And please, your offline lectures have started, so I want all the students to be present in their classes. Okay, bye, see you and meet you again in the offline lecture.